I welcome you all on the platform of Indigo Medics Master. My name is Dr. Rashda Mushtaq. Most of you know me. Who don't know me, they will know me in the at run of time. Um, I have done my MBBS from Nishtar Medical College, and then I have done my FCPS and training from Nishtar University, Nishtar Hospital as well. After that, I started working as senior registrar in Gurki Trust Teaching Hospital. Then I left like 4 years almost. I worked there. Then I left for work in Lahore General Hospital. I have worked there as an assistant professor for like 1 year. Then I left that as well. Now I'm doing my private practice. I did my MRCOG in 2024 and I did my MRCPI in 2024, CHP in 2025. And now we are here bringing me and Dr. Humera all our excellence and experience and all the hard work that we have been doing and the things we have achieved by doing things that one should do uh, to come till here, to share all those things with you people so that you can benefit, because most of the people in our community, they don't share their experiences, they don't guide you, they don't tell you even which book to read. Okay, so we are here not only for the Pakistani exams, we will also guide you for the international exams as well, right? So starting from this 10-week, comprehensive crash badge, it's still like 3 months till your exam. And I hope and I wish and I'm sure all of you can do it. The things we have designed for you, how we have, make it that you will still have like more than 3 weeks before your exams when you will be done with your course, inshallah. You will be done with your books, MCQs books, inshallah. And you will be starting your recall discussions, right? So the schedule is like this. You have revisions day, days between the schedule. You have weekly sessions. We will explain you later, right? So first, I'll ask Dr. Humera to introduce herself, and then we'll formally start the session. Okay. Hello, all the participants. I'm Dr. Mera Rashid, and I did my MBBS from Medical College in 2010, and after that did my house job as well as my postgraduate residency in the Nishtar Hospital, Multan. And after passing my FCPS Part 2 exam, I joined Gurki Trust Teaching Hospital in the Lahore, that is affiliated with Lahore Medical Dental College, as senior registrar. And I have been working there since 2019, and currently I'm working as assistant professor obstetrics and gynae in Lahore Medical and Dental College. So, and I did my MRCOG recently in 2025, and me and Dr. Ashta are here, and we have created that group to guide many people and many aspirants that are here and that seek learning and guidance to pass their exam. Because once we were in your boards as well, this is not that you are shoes. So we know better that how to guide you and Dr. Humera, your voice is cutting. marks in your exams as well. So I hope you will find okay. Just repeat 2, 3 words that you said before. Now, please. Yeah, it's fine. Hello. Hi, Humera. Am I audible? And helpful so that you can have. Hi. Am I audible? Yeah, you are audible. Just keep. Okay. Yeah. Okay. So I expect internet. I'm so active for your exam preparation. Dr. Humera, everything was cut and we heard only exam preparation. Bas. Guys, am I audible? Or you can continue. आ रही है Hello. हाँ, शायद डॉक्टर राशिदा का मसला है नेटवर्क का। Okay, मेरी अच्छा, आवाज मुझे क्लियर नहीं है आ रही। महविश? ओके जी आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है। बस कहीं पे भी कोई कटे तो आप प्लीज मैसेज कर दो, ताकि फिर वो रिकॉर्डिंग जरा क्लियर होती है, तो वो जरा सही रहता है जो लोग जी रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके लिए। ठीक है, ओके। सो हुमेरा, आर वी डन?
Yes, we are done. Continue, please. Okay, thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining again. So let's start it officially. And before we can proceed, I forgot to tell you, I have been teaching online, students for like 5 years, from 2018 to 2024. I left because I had some problems and I could not manage it. But again, I'm here. So, Bismillahirrahmanirrahim. Dream big, stay positive, work hard, and enjoy the journey. This is the quote of the day. Basically, these things I keep posting in the group as well. These are to motivate you people. Now, आपको एग्जाम करना ही करना है. आपने डिसाइड भी कर लिया कि अब हमने फरवरी वाला अटेम्प्ट देना है. तो right guidance will take you there, but you have to put your hard work, your 100% into this effort. Otherwise, half-hearted efforts will not lead you anywhere, even if we, make a paste or a shorba out of everything and put it in your brain. Still, you will not get there if you don't, put your effort. Okay. You have to follow the schedule. You have to follow, what we are telling you. You have to learn. Okay. Because it's not only about passing exam. It's about people's life that you are going to, manage throughout your life, because this is the journey that every one of you is going to be consultant, inshallah. So once you are consultant, nobody teaches you, nobody is tell you कि क्या करना है क्या नहीं करना, because at that point everyone expects कि she is having a degree, he is having a degree, and now they know everything. So why we need to tell them? So put yourself in a place, in that place right now, that someone's life, someone's baby's life, someone's mother, someone's sister, someone's daughter will be in your hand. And it's not only in this world, even in the next world you have to answer for everything you have been doing to your patients. So talking to them nicely, listening to them, explaining them the problems, the side effects, everything, and explaining the best choice possible for their circumstances, for their problems, is your responsibility. And before you get there, you need to know things before you will be having a, when you will be having a baseline knowledge, a thick baseline knowledge, then only you will be able to um, do everything that I have told you. Otherwise, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, for example, you are doing a patient with hypertension or obstetric cholestasis or diabetes or skin conditions or renal problems or cancers. So अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, या आपको 5 year सर्वाइवल नहीं पता, पेशेंट को कैंसर का पता चला है, उसकी जिंदगी तो वहीं खत्म है. ठीक है, आपको स्टेज का नहीं पता, आपको टाइप्स का नहीं पता, उनकी प्रोग्नोसिस का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इनका सर्वाइवल क्या है. तो व्हाट यू विल टेल द पेशेंट एंड व्हाट दे विल गेट फ्रॉम यू, और व्हाट दे विल अंडरस्टैंड कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरी तो दुनिया खत्म है जिसको ये डायग्नोसिस आपने दे दिया. ठीक है. सो एम आई ऑडिबल अप टिल नाउ? हेलो. Yes. या थैंक यू. Yes, प्लीज yes. मेरी आवाज कहीं कटे तो मुझे बता दें, क्योंकि फिर मैं अगर ये ना, मुझे वापस खोलना पड़ता है सारा पूछने के लिए. ठीक है. बोल दें जहां पे भी मेरी आवाज खत्म हो. ठीक है. ओके. या डॉक्टर हुमैरा, यू कैन व्हाट्सएप मी if I'm not audible or screen is not visible or anything. Okay, thank you. So But this there are session floaters. still, Still, there are floaters sometime. no, if Now let's. I have It's clear hidden now. them. It's clear. Okay, thank you. So it will go away. अगर अभी थोड़ा सा आ भी जाए ना, वो चला जाएगा. So the session agenda is, आज का session agenda क्या है? To have the knowledge about your exam dates, formats, how you will book, how you will apply, what to study, how to study for IMM, for MCPS, for part 2, what are the recommended textbooks and MCQs books, detailed discussion on the topic of discussion today, that is uterovaginal prolapse, and then we'll have some MCQs discussion and question answer session. So quickly we'll wrap up because time is short and we need to. Okay, so this is the exam journey. You had a dream to become a doctor. You did your MBBS, then you did your house job. Then you passed your FCPS 1, IMM and Part 2 candidates, MCPS. Still, you got registered with, RNR CPSP. And now you are completing your training, or you have completed already maybe. For the FCPS candidates, you are stuck in IMM maybe or Part 2 maybe. And MCPS candidates, if they are done with their training or they're about to, finish their training, they are also waiting to appear in their exam, right? So this will be the end of the journey of becoming a consultant, where you will complete your exam, right? So
this is the schedule of the theory examination for 2026. Ignore this part, ignore this part. So part 2 FCPS, 2nd February 2026. Same is the IMM, 2nd February. They said they इसी दिन होगा, but most of the time it's on the separate days, right? And MCPS 9th February. So most of you are going to appear on, the same week for your final exams, right? So how to apply, CPS website is there, and you can go and, open your specialty. For part 2, the major subjects like medicine, obstetric, gynecology, ophthalmology, everything. September 2nd, 2025, this was, published, and you can apply 20th of October. Okay. Repeaters can apply till 17th, and the fresh candidates, they can apply till 20th. I think you have applied for it already. Repeaters, maybe, I hope so, no one of you is a repeater, and nobody is ever a repeater. Okay. So 17th November, still you have time to apply. With late fees, the date has already gone. And withdrawal of application, okay, late fees, still you have time, 2 days. अगर आपने अभी तक जमा नहीं कराया तो 2 दिन है आपके पास, फिर भी आप जमा करा सकते हैं. अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हैं एप्लीकेशन तो भी 2 ही दिन है आपके पास. ठीक है, फ्रेश लोगों के लिए. और रिपीटर 1 दिसंबर तक विड्रॉ कर सकते हैं. और चेंज ऑफ सेंटर की डेट भी 3rd नवंबर है for fresh and repeaters 1st December, right? This is for FCPS 2. For IMM candidates, it's for fresh candidates, same 17 October. For repeater, you still have time. For late fee, time has gone. I think most of you have already booked. This is already gone. This is withdrawal. Withdrawal के लिए आपके पास अभी time है 7th or 14th for the fresh candidates, and December 8th for repeaters, right? For MCPS, you have already fresh candidates, you have already booked yourself with normal and late fee. Till 3rd November, you still have chance like part 2 that you can apply. For repeaters, the date is 31st December and 7th January. With late fee till 14th January, you have time. And withdrawal of application, freshers, you have time till 3rd November, and repeaters, you have time till 14th, right? So this is your schedule of examination, the dates, most of you already know, right? Exam format, there are 2 papers. Paper 1 is 100 MCQs, it's 2.5 hours. And paper 2 is also 100 MCQs, 2.5 hours, right? So how to study? पता तो सबको है कि एग्जाम देना है, और ये सारा भी कि हमने फीस जमा करा दी है या बुक कर लिया एग्जाम. अपने प्रीशियस 15,000 हमने दे दिए CPSP को. So now how to study? So syllabus is there to guide you from where to start, how to start, what to do, right? So basically we divide the syllabus in 14 modules, right? Like early pregnancy, antenatal, maternal medicine, labor and delivery, postpartum. Then in gynae, you have general gynecology, subfertility, urogynecology, oncology, and sexual reproductive health, right? For IMM part 2 and MCPS, it's the same, right? Because they ask you extensively from labor, from maternal medicine, from, static emergencies, from labor and delivery. I think IMM or part 2 का भी, MCPS का भी, एक paper is, most of the part is labor. It's same in MRCOG too. It's same everywhere, right? The whole world, because they give so much importance to the labor and delivery part, right? So this gynae part, for part 2 and MCPS, you have to do all these modules with us, right? For IMM, whole obstetrics, and from here, gynae, whole gynae, subfertility, urogynae, and infections, whatever concerns you. Cancer doesn't concern you much, but you will be having, pre-cancerous lesion of the cervix, because sin का बहुत ज़्यादा आता है. अभी वैक्सीनेशन भी हो गई है पाकिस्तान में, तो अभी they will be asking you many questions regarding vaccination as well. So you need to be very careful, you need to be very active, क्योंकि आज के बाद देखो अब वो टाइम नहीं है कि you waste your time कि अच्छा पढ़ लूंगी, हो जाएगा, कर लेंगे. अभी बहुत टाइम है, बिकॉज अभी भी ये 10 वीक्स में हमने बहुत मुश्किल से स्क्वीज किया है आपके सिलेबस को, इफ यू वांट टू पास द एग्जाम. ओके, सो फ्रॉम द डे 1, लाइक जो पेड ग्रुप है उसमें कल से एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी. ठीक है, सो कल से आज रात को आपका स्केड्यूल आ जाएगा, कल से आपकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी. सैटरडे को, आज सैटरडे को हम ये सेशन ले रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे को हमारा पेड ग्रुप का पहला सेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज
आज के दिन तक आप जो करना था आपने कर लिया, कल से आपकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया? सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस, वेरी फोकस्ड, टाइम निकालो, हर चीज को स्केड्यूल करो। इवन इफ यू स्टडी लाइक 2 to 3 hours पर डे, दैट विल बी फाइन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स ग्रुप में पढ़ने का फायदा यही होता है, अब यू डिड डू अ peer लर्निंग, you are directed with your mentors, you are having all the resources, everything at one click, right? So recommended books आपको कहते हैं ड्यूहर्ट्स पढ़ें, एविडेंस बेस्ड पढ़ें, हाई रिस्क पढ़ें, शॉज 10 teachers for IMM, 10 teachers both statics and gynecology, प्लस ड्यूहर्ट्स का जो भी मटेरियल है या गाइडलाइन है वो हम शेयर करेंगे। आपने पढ़नी 10 टीचर्स है और फिर ड्यूहर्ट्स को रीडिंग देनी है। For part 2 candidates, MCPS candidates, I want you to take a book, even you want EBM or you want Dewhurst, whatever you want, you think is easy. I personally recommend Dewhurst, right? Because evidence base is a summary sort of book. So that will not suffice you if you want to build concepts, if you want to study thoroughly. क्योंकि मैंने शुरू में क्या समझाया, we have a huge responsibility of patient's life. So you need to study thoroughly, you need to do pathophysiologies, you need to do things, right? So RCOG NICE guidelines we'll be discussing in the groups, so you do not have to read them separately. ये guidelines हम आपको पढ़ाएंगे, आपने बुक्स को पढ़ना है और अपने नोट्स बुक्स के ऊपर बनाने हैं या वहां पेज अटैच करने। सो वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, क्योंकि आज हमने चैप्टर पढ़ Dr. लिया Rashda, हमने। जी I would like to give my input here, please, जी regarding जी the जी books. जी जी बिल्कुल करें Uh, करें, बताएं। Okay, so guys, personally, I have seen at the time of my preparation, as well as because the postgraduate residents are appearing in the exams in my department, and as I have read, I would personally recommend you to keep the Dewhurst textbook of Obstetrics and Gynecology as your main textbook, not the EBM. EBM is a very good book, but it doesn't contain the pathophysiology and the basic knowledge. And Same. if your basic knowledge is not strong, then you will not marks good marks in the exam. Basic knowledge should be sound and strong enough to pass the exam. Okay, so yes, you can you should also read the evidence-based medicine, because this is a good textbook and it contains all the recent guidelines incorporated into the book. And you can put some additional, you can make some additional notes on your Dewhurst textbook as well, if you find some additional point in the evidence-based medicine. Is it clear, everyone? Yes. Okay, thank Yeah, you. okay. So please, yeah, continue, please. Thank you, Dr. Omera. Acha, this is what I was telling. Dewhurst is the main book. So you have to study at every cost because you want pathophysiology, everything that Dr. Omera has explained. Dewhurst में हर चीज लिखी हुई है। अगर आपको Dewhurst मुश्किल लगती है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, फिर भी पढ़ो। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, किसी के साथ मिलके पढ़ो, किसी को कहो एक सफा तुम मुझे पढ़ा दो, एक सफा हम पढ़ा दें। हम इसलिए ही हैं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, विल बी क्लियरिंग देम, ठीक है? आपको लेक्चर्स इसीलिए देंगे क्योंकि वहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है, वो हम आपको देंगे कि दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फायदा आपको एग्जाम में ये होगा, डॉक्टर हुमैरा विल बी रिमेम्बरिंग, जब हम अपना पार्ट 2 FCPS का एग्जाम दे रहे थे, तो आई थिंक अगस्त में हमारा एग्जाम था और जुलाई में किसी ने कहा कि पेपर लीक हो गया और पेपर चेंज हो गया, ठीक है? और दैट वाज द पेपर Yeah, जो I'm still remembering that, and I give my trainees that example as well. हाँ, और दैट वाज द टाइम जब मोस्ट ऑफ यू पीपल, सब आपको सीनियर्स यही बताते हैं, रिकॉल्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बड़ा पेपर आता है। यार आई एम टेलिंग यू, रिकॉल्स आर फॉर प्रैक्टिस ओनली, every book is for Yes, practice only. You have to clear your concepts that you can solve concepts. any MCQs in the exam, because it's not only for the exams, it's for the patient's life. You have to solve patients after these solving these exams. So this is not for exam only, so you can ratify recalls and go and pass your exam and get the degree, and don't know the basic thing जो MCQ से बाहर आ गया तो आप वहीं फ्लैट हो गए, ठीक है? So at that time we were having such concepts कि इतना हॉच पॉच पेपर था और इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि जब हम बाहर रहे तो हम सोच रहे थे हर सवाल का जवाब मायरीना था एक पेपर में। लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैड आंसर लाइक मायरीना, और लाइक आज से 6-7 साल पहले मायरीना इतनी कॉमन भी नहीं थी। अब तो फिर भी लोगों को पता है मायरीना का, बड़ी कॉमन है, रख रहे हैं लोग, रखवा भी रहे हैं, एक्सेप्टेंस बहुत हो गई है। उस दौर में ऐसा नहीं था और हम बहुत परेशान थे कि यार लगा तो आए हैं, पता नहीं अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ पास्ड इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट पार्ट 2. But this is what example I'm telling you, clearing concepts is how much important in clearing your exams, right? So moving further, these are MCQs books, these are not meant to scare you.
But this book, Brine, Andrew Caesar, has 3 editions. We'll be discussing most of them in your groups, right? Don't worry. Succeeding and Amanda Jones. Most of them, we'll be giving you the PDF file for these books, and daily MCQs will be discussed from these books, right, in the paid group. So you will be covering them side by sides while doing your books. So you will have a concept how the questions are asked, how the big, scenarios, you float through them, you navigate through them, and how to get important information and what information to focus on, right? So daily we'll be posting MCQs from these books, and one by one we'll be finishing. The module will be covering from most of the books. Not all, many कहती कि सारी हम कर लेंगे एक ही उसमें, बट 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्स विल बी कवर्ड डेली. एक मॉड्यूल जब आप खत्म करोगे तो इन बुक्स में मॉड्यूल्स के जितने क्वेश्चंस हैं यू विल बी डन विद देम, राइट? सो दैट यू विल हैव प्रैक्टिस. यू विल हैव, अगर यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर दे भी देते हैं इन किताबों से, ठीक है, सब लोग अपने जाती सवाल नहीं बनाते, क्योंकि आई हैव डन माई CHP, आई हैव डन सुपरवाइजर वर्कशॉप्स, सो आई नो हाउ दे मेक MCQs. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट मेक इट, एंड समटाइम्स हमने देखा है कि MRC की किताबों से भी सवाल आए हुए थे. सो यू डू नॉट नीड टू वरी. वी विल बी कवरिंग दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स विद साइड बाय साइड डेली एक्टिविटीज के साथ. जब डेली टॉपिक डिस्कशन होगी, सुबह आपको MCQs मिल जाएंगे, दे विल पोस्टेड इन द ग्रुप्स, एंड शाम में उनकी की पोस्ट हो जाएगी. आपने गो थ्रू कर लेना है, अपना आंसर देख लेना है कि आपने क्या आंसर दिया था. डेली यू विल बी सेंडिंग योर की. मॉर्निंग में जब MCQs पोस्ट हो जाएंगे, शाम को आपने टॉपिक डिस्कस करना है, और शाम को आपने ये करना है कि वो जो शाम तक अपनी कीज भेज देनी है हमें, ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे करके एक मैसेज बना के आपने भेज देना है. और शाम को कोई भी क्वेरी हो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि MCQs में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है. सो अब तक इतना कुछ सुन के परेशान हो गए, पजल हो गए, दुखी हो गए बच्चे. सो यू डू नॉट नीड टू वरी. वी आर हेयर टू हेल्प यू. Indigo is here to rescue you all, and we'll explain you how you can do it. First you need to prepare a schedule. Once you want to achieve a target, पहले आपने एक schedule बनाना है. अब सबको पता चल गया, you have to appear in February, so you know how many days are left, how many days you can study. 10 weeks का हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है. You need to form a calm environment daily, prioritize more important topics or high yield topics. Join a study group that you will be joining, and most of you are already in the paid group. And use of online resources will be providing you all these things. टेस्ट योर सेल्फ. यू विल बी हैविंग मॉक एग्जाम्स एट द एंड ऑफ 1 month. उस महीने में जो मॉड्यूल आपने पढ़ लिए होंगे, 2.5 महीने का आपका है, सो यू विल बी हैविंग 3 मॉक एग्जाम्स इन दिस 2.5 months. रिवाइज रेगुलरली एंड गेट सफिशिएंट रेस्ट. पागल नहीं होना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वी एडवाइज यू टू डू इट स्मार्टली, ओके. क्योंकि बार बार अटेम्प्ट्स देने से भी आपका मोरल डाउन होता है. चाहे बहुत बड़ी मजबूरी भी है तो फिर यू प्लान अकॉर्डिंगली. घर में 100 मसले हो सकते हैं, बच्चे हैं, मैरिड लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं, शादियां हो रही हैं, घर में 10 मसले हैं, इट्स ओके. देन यू प्लान योर अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली, राइट. नाउ what we offer, basically we have this modular curriculum. ये ऑलरेडी मैं मॉड्यूल्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. we'll give you a schedule for daily activities, for daily topics. हर वीकली आपका एक सेशन होगा, ओके. MCQs डिस्कशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डेली टॉपिक डिस्कशन मैं आपको बता चुकी हूँ. 24/7 मेंटोर सपोर्ट, ठीक है. अब मैं डॉक्टर हुमैरा, वी बोथ विल बी इन द ग्रुप. एनीथिंग एनी टाइम यू वांट टू आस्क, हम में से जो फारिग है या जिसकी होगी टर्न वो आपको जवाब दे देगा, ठीक है. लाइव लेक्चर्स वीकली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. पास्ट पेपर्स, अच्छा जी, पास्ट पेपर्स जो हमारे ये पेड ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं, दे विल बी हैविंग 1 year पास्ट पेपर्स फॉर फ्री इन द ग्रुप. और उसके बाद वाले जो है ना, वो पास्ट पेपर्स का ग्रुप बनेगा, और जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, दे विल हैव स्पेशल डिस्काउंट इन दैट ग्रुप एज वेल, राइट. एंड ऑल द सपोर्ट यू नीड, वी आर हियर. whatever you need to ask, whatever you need to discuss, even personal problems में भी लोग ओपिनियन लेते हैं, हम उनको बताते हैं, and they get through it अल्लाह के हुक्म से, ठीक है. So this is the course that we are launching today. It's 10 weeks duration. कल से activities start हो जाएंगी. These are the numbers you need to contact to register. Most of the things I have already explained, right? Private study group है, regular MCQs practice होगी, live sessions होंगे. You will be having concept-based learning that will be aligned with the CPSP exam pattern. Even if CPSP के exam pattern हमारे साथ align नहीं करता ना, still if you have good concepts and you know the thing, आपको कोई बंदा फेल नहीं कर सकता. ये बात जिंदगी में याद रखना, चाहे वो कोई एग्जाम है,
ठीक है, चाहे वो MRCOG है, चाहे वो MRCPI है, चाहे वो MBB FCPS है, वॉट एवर, IIM MCPS, वॉट एवर, इफ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट, नो बडी कैन फेल यू। ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क। ये स्केड्यूल है जो आज से आगे आपका शुरू होने वाला है पेड ग्रुप वालों का, ये पेड ग्रुप में भी पोस्ट हो जाएगा। लुक, डेली वी हैव डिवाइडेड टॉपिक्स, एट द एंड ऑफ वीक वी हैव सेशन डे। सो यहाँ तक जितना आपने पढ़ लिया होगा, इसके रोज एमसीक्यूज भी हो गए होंगे, रोज आपका टॉपिक डिस्कशन भी हो चुका होगा, और यहाँ पे हम एक आपको प्रेजेंटेशन में इसी तरह पढ़ाएंगे जैसे अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाने लगे हैं। एंड देन यू विल कम अप विद द क्वेरीज, क्योंकि जब आप सेशन डे पे आओगे ना तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, you have done your topics, you have done your MCQs, अगर आप फॉलो करोगे स्केड्यूल। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट few minutes कि you have to do it yourself, your input is necessary। मैं आपको गाइड कर दूंगी, डॉक्टर मेरा आपको गाइड कर देंगी, हम मटेरियल भी आपको दे देंगे, हम समरियां भी दे देंगे, हम आपको नोट्स भी दे देंगे, हम एमसीक्यूज भी दे देंगे, एवरीथिंग विल गिव यू, बट यू हैव टू रीड योर बुक, यू हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन। अगर समझ नहीं आता 10 दफा पूछो, नो प्रॉब्लम, वी आर हेयर टू गाइड यू एंड करेक्ट यू। ये कोर्स शुरू करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने और पढ़ाने, बेसिकली सदका ही जारी है। आप में से जितने लोग अच्छे अच्छे पेशेंट मैनेज करेंगे ईमानदारी के साथ, वो उतना ही सवाब हमें होगा। तो अपनी जिंदगी में ना अपने दिमाग में एक नियत इस तरह की हमेशा बनाओ कि लाइफ में कोई ऐसा काम जरूर करो जो आगे काम आए, क्योंकि बंदे चले जाते हैं, उनका काम आगे चलता है। ठीक है, सो फ्रॉम 9th यू कैन सी वी हैव मेडिकल डिसऑर्डर स्टार्टिंग। मैटरनल मेडिसिन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। This will be the next 1 week of the maternal medicine. Then we'll have labor and obstetric emergencies, then early pregnancy, then we'll have gynecology started. So by the first week of December, you will be done most of your obstetrics. ये आप देख रहे हो हमने कैसे प्लान किया आपके साथ। Like 5 weeks में you will be done with your obstetrics and then you will start your gynecology. और गायनी भी आप by the I think 10th of January, yes 10th of January, you will be done with all your syllabus, whole syllabus. By 17th and 24th January, we'll have 2 sessions. One will be a recall session कि जिसमें पूरे कोर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट, यू हैव प्रॉब्लम विद डायबिटीज, यू हैव, आप ग्रुप में पोल्स करेंगे, यू पीपल कैन टेल अस, सो वी कैन इंक्लूड दोज टॉपिक्स इन द प्रॉब्लम बेस्ड एरियाज के नाम से एक आपका सेशन होगा जो होगा 17 जनवरी को, राइट। और 24 को फिर एक डी स्ट्रेस मोटिवेशन का एक सेशन होगा आपका। और जब तक हम 10 के बाद रिकॉल्स शुरू कर देंगे और रिविजन्स भी साथ साथ करेंगे। सो आई थिंक आई एम क्लियर अप टिल नाउ, एवरीवन क्लियर? प्लीज ओपन योर माइक्स एंड से इट। इनबॉक्स नहीं मैं खोल सकती। हेलो, Hello. यस यस डॉक्टर मेरा, आर वी डन अप टिल नाउ? Yes, sir, we are done up till now. We have ओके, already explained, you have explained very well that what is our way of teaching and how we will guide all of our students. And this course will be very beneficial and it will prove very helpful in your passing your exams. इंशाल्लाह We इंशाल्लाह। tried our best to make the best schedule for you people in the limited few days, like it's almost 70 to 75 days schedule, and we will try to cover each and everything in that duration. But they have to study, na? We will guide them, we Yeah, will they have explain to study. everything, but Of they have course, to study. yeah, of course, Dr. Ashta, we can't put our brains in their skull, so they have to study themselves. They have to study themselves. We are here to guide them as well. Whenever they need our guidance, we are here to help them, but they have to study for themselves. Right. So any And question up till जब now? तक ये अपनी बुक खुद Hmm. नहीं पढ़ेंगे, बेशक हम Hmm. इनको जितना पढ़ा दें, जब तक ये अपनी बुक खुद नहीं पढ़ेंगे, it is difficult to pass the exam. I have seen people, they take like 4 5 courses, हर जगह वो टांग डाल लेते हैं, but they Yes, don't yes, follow a yes. single schedule, they don't study, they don't pass. हाँ. The key is to just stick to a single schedule and just stick to your books. Right. Okay. So everyone's clear up till now? कोई सवाल? So we can proceed with topic discussion, that is a uterovaginal prolapse. Guys, any question?
प्लीज यू कैन ओपन योर माइक और राइट, अगर किसी को माइक ओपन करने में प्रॉब्लम है तो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। नो क्वेश्चन, इतना अच्छा बताया मैंने। हम्म। Okay, let's proceed with the topic discussion. So I hope it will be, a snapshot of what we are going to do with you in the paid group, right? So let's discuss. Bismillahirrahmanirrahim. So topic is uterovaginal prolapse. Most of you know it, have seen it, have maybe read it also. So let's discuss. First of all, जो बहुत सवाल पूछते हैं जो आपको पता होना चाहिए, डिजीज बर्डन बेसिकली व्हाट इट विल डू, इट विल टेल यू हाउ मच ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी इन योर पेपर। ठीक है, डिजीज बर्डन, इसलिए जो चीजें बहुत कॉमन होती हैं दे आर ऑलवेज कॉमन, ये बात याद रखना, कॉमन थिंग्स आर ऑलवेज कॉमन। तो अगर 30 to 40% औरतों को प्रोलैप्स हो रहा है ना, तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, 9% of the people or women are symptomatic of prolapse. 30 to 40% are having prolapse, but not everyone is having symptom. Only 9% of them are having symptoms, and you need to treat only these 9%, not the 30 to 40%. If someone is not having any problem with the prolapse, you are not going to do anything. Okay. So lifetime risk of undergoing a prolapse surgery. So these 9%, out of these 9% people, 11% people are at risk of getting a surgery for prolapse. So this is the disease burden. अगर आप 100 सर्जरियां रोजाना कर रहे हैं तो उसमें से 11 सर्जरियां आपकी प्रोलैप्स की हो सकती हैं। ठीक है, so this is how much you need to know the prolapse. First of all, how we start with the history. Whenever the patient, because it's not a static subject, it's a clinical subject, so you need to study on your patients, right? आपने बुक पढ़ ली, जब आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो असल चीज ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करो अपने पेशेंट्स के ऊपर, राइट? So first of all, you need to know the history points. What are the symptoms of prolapse? And you need to do them compartment wise. Prolapse का केस या prolapse जब भी क्लिनिकल में आता है, पहले जमाने में लोग कहते थे कि जिसको prolapse आया वो फेल है। ठीक है, लेकिन जब हमने एग्जाम की तैयारी की तो फिर हमने देखा तो इतना आसान है, क्यों फेल हो रहे हैं सब लोग? ठीक है, क्यों? क्योंकि दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे वर सो मच स्केर्ड एंड फ्राइटेंड ऑफ द प्रोलैप्स कि वो सोचते थे कि ये नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आपसे ही होगा, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? लाइक 1 मिलियन पीपल थे जिनमें से आपने एफएससी किया, फिर आप मेडिकल कॉलेज में आए, फिर आपने हाउस जॉब किया, आपके साथ वाले कहाँ कहाँ हैं, घरों में बैठी हुई हैं लड़कियां, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ तो बेचारी मर खप भी गई हैं। इवन आई नो पीपल पर्सनली दैट हैव गॉन, that are gone, and you're still here. So please use this time to make a difference. So आपसे ही होगा, just you need to put the effort and your brain and your time into these things. So compartment wise you divide it. Basically prolapse is involving 3 compartments. That is your anterior compartment, that is called the involving the bladder and your urethra, and the middle compartment that is involving the vagina and uterus, and the posterior compartment that is involving rectum and gut, right? So कंपार्टमेंट वाइज पूछने का मतलब ये होता है कि आप कोई सिम्टम मिस नहीं करते, और ऑल्सो यू नो विच कंपार्टमेंट टू एड्रेस। और क्योंकि सर्जरी जब होगी तो वो कंपार्टमेंट वाइज ही चलेगी और वीकनेस के हिसाब से चलेगी जहां पे वीकनेस है। अभी एनाटॉमी में आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? सो एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या होगा? यूरिनरी प्रॉब्लम्स होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, मे बी दे शी नीड्स टू पुश इट इनसाइड टू यूरिनेट। देन मिडिल कंपार्टमेंट में शी कैन हैव इरेगुलर ब्लीडिंग इन केस ऑफ अल्सर्स, ड्रैगिंग सेंसेशन एंड बैक एक होगा व्हेन द प्रोलैप्स इज हैंगिंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज यूट्रस जो है ना वो पीछे सैक्रम पे इसको अटैचमेंट होती है, ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है यूट्रोसैक्रल। सो जब उसके ऊपर खिंच पड़ती है तो यू गेट टू हैव अ बैक एक, राइट? पेशेंट गेट्स बैक एक। देन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज द वे इज नॉट पेटेंट, so they can have problem with intercourse and their sexual life can be disturbed. Then they can have problems posteriorly with the bowel. Okay, constipation, they have to strain a lot to defecate, and whenever they defecate they see ballooning of the structures coming outside, they get scared. Also sometimes they have to manually reduce the prolapse to defecate or to urinate or to have a sexual interaction, right? Then examination, हिस्ट्री में देखो ये तो प्रोलैप्स स्पेसिफिक है, इसके अलावा बाकी मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट।
वो हम रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ डिस्कस करेंगे, राइट। एग्जामिनेशन में जीपी में बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई ओबीज है, शी इज हैविंग अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग प्रोलैप्स। देखो, प्रोलैप्स को डायग्नोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोलैप्स को मैनेज करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको रिस्क फैक्टर्स को मैनेज नहीं किया ना, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यू विल एंड अप हैविंग अ सर्जरी, patient will be treated, and she did not have lifestyle modification like losing weight, like treating her cough, constipation, heavy weight lifting. That are the modifiable factors. And do pelvic floor exercises. If she is not doing these, she will come again with wall prolapse. आपने स्ट्रेक्टमी कर दी, वो wall prolapse के साथ आएगी। आपने sacrosteropexy की, वो recurrent prolapse के साथ आएगी। और फिर आपको दो चार सुनाएगी भी कि आपने मेरे पैसे लगवा दिए और इतना इतना बड़ा बड़ा कुछ कर दिया और मेरा मसला तो वहीं पड़ा। ठीक है। एग्जामिनेशन में अगेन यू विल सी factors that are increasing the intra-abdominal pressure, like a pelvic mass or any adnexal mass, और यूट्रस में कोई बहुत बड़ा ह्यूज फाइब्रॉइड हो सकता है, या नॉन गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर्स, या कोई और चीज हो सकता है उसको सीएलडी हो, इतनी बड़ी एसाइटिस पेट में है कि वो उसकी वजह से प्रोलैप्स नीचे से आ रहा है। सो यू नीड टू ओपन योर आईज एंड ब्रेन बिफोर यू सी अ पेशेंट, and it should be as a whole examination, as a whole you need to see the patient as a whole, right? Then you confirm the presence of a prolapse. Once you confirm that there is a prolapse, then you record the degree of prolapse. Dr. Mehra, are you saying something? No, continue, please. Okay, thank you. So you need to record the degree of the prolapse, what is the stage, what is the problem, and then you give a staging system, that is a POPQ system. Then you assess the pelvic floor activity, muscles की activity आपने लाजमी देखनी है, okay? So those who will be joining us for the TOEIC exams, अभी नवंबर में TOEIC exam भी इंशाल्लाह हम launch कर रहे हैं for the MCPS candidates who are going to appear in the December. That will be a crash course. So you will be have a hands-on in the Lahore. जो लाहौर के candidates हैं, they can come to our place, और वहाँ पे हम आपको hands-on और practical सारा कुछ करवाएंगे, like फोर्सेप्स है, वैक्यूम है, माइरीना प्लेसमेंट है, आपने कॉपर्टी रखनी है, आपने जिडेल रखना है, आपने इम्प्लानॉन रखना है, आपने स्किल्स करनी है, ड्रिल्स करनी है, आपने डमी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग हैंड्स ऑन। ठीक है। सो उस टाइम हम आपको बताएंगे कि एसएस कैसे करनी है, पेल्विक फ्लोर की एक्टिविटी। और अगर देखो ये डिजीज है मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट्स की, सो वजाइनल एट्रोफी को भी अपने जहन में रखना है, डू नॉट मिस दिस। ठीक है। सो एग्जामिनेशन कैन बी डन इन स्क्वेटिंग और स्टैंडिंग। पहले नहीं स्क्वेटिंग और स्टैंडिंग में करना, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सी द पेशेंट इन डॉर्सल सुपाइन पोजीशन। डॉर्सल सुपाइन का मतलब ये कि पेशेंट सीधी लेटी हुई है, उसका जो फेस है वो छत की तरफ है, शी इज फेसिंग द सीलिंग, एंड शी इज जस्ट फोल्डिंग हर लेग्स, फ्लेक्सिंग एट द हिप्स एंड नीज एंड ओपनिंग देम अपार्ट फॉर यू टू इंस्पेक्ट और एग्जामिन। लिथोटमी नहीं बनानी, लिथोटमी इज पुटिंग द लेग्स ऑन द पोल्स, राइट। सो लिथोटमी नहीं बनानी, डॉर्सल सुपाइन पोजीशन है जो आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में करनी है। बट इफ द पेशेंट सिम्टम आर समथिंग एल्स, she is telling you that there is a huge bulge and there is ulcer, there is bleeding, I need to push back at to urinate, to defecate, but you examine, there is nothing. It happens most of the time, it happens even जो पहले लोग एग्जाम में फेल होते थे इसीलिए हुए थे क्योंकि पेशेंट्स वार्ड्स में दाखिल हैं, उनकी पैकिंग्स हो रही है, और जब एग्जाम में वो लेटी है, पेशेंट को एक्सपोज किया, अंदर कुछ भी नहीं है, वो कह रही है मेरा इतना बड़ा बड़ा प्रोलैप्स है। ठीक है। then you have an option even in your clinical practice, ask the patient to squat or walk or stand if symptoms are not explained by the clinical findings that you have done, right? Then you need to use a validated pelvic floor questionnaire. Basically जिस तरह I have explained you the compartment wise history, internationally और पूरी दुनिया में, even India में भी, they use proper questionnaires जिनमें they ask you compartment wise history, they ask you about the middle compartment, they ask you about the anterior, they ask you about the posterior, and they don't want to miss anything because this thing is affecting hugely. ये एक उसका है सेक्सुअल डिस्फंक्शन का क्वेश्चनियर है। ये आपको डराने के लिए नहीं है ना, आपने इसको याद करना है, ये सिर्फ बताने के लिए। क्या पूछते हैं जब हिस्ट्री में कि फलाना सिम्टम हमेशा रहता है, कभी कभी ज्यादातर रहता है, कभी कभी होता है, कभी एक दफा हो गया या कभी नहीं हुआ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट you need to ask when you are asking patients about their history, about the symptoms what they are having. So risk factors, number 1, pregnancy and difficult childbirth, बहुत important है, और pelvic floor trauma due to anything else, chronically increased raised intraabdominal pressure, ये हम कर चुके हैं, chronic cough, constipation, कोई मैस है pelvic cavity में, abdomen में कोई मैस है, ascites है, weight lifting है, obesity है, okay?
Then old age, specifically hypoestrogenism. Aging or menopause can, weaken the tissue, loosen the ligaments, and then things can come out, where they shouldn't. Then genetics. ये अब दो चीजें हैं जिनको मैंने इसलिए पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, अगर किसी ने और किया हो, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स। तो इसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर जितने भी हैं, इनको हम समहाउ मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी वेरी गुड ऑब्स्टेटिशियंस, you will take good care of the patients during pregnancy, will not lead to a difficult childbirth और pelvic floor trauma आपके हाथ से नहीं होना चाहिए, और इन रिस्क फैक्टर्स को आप मैनेज करोगे, ठीक है। एंड देन हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म अगर किसी के है तो आप लोकल एस्ट्रोजन दे दोगे, नहीं तो गोली दे दोगे उनको खाने के लिए, लेकिन जेनेटिक्स इसको आप नहीं कर सकते। सम रेसेस आर मोर प्रोन एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वी कैन नॉट करेक्ट देम, okay, even after surgery you have to tell them that it will come again because it's written in your fate, ye hoga, even if we do it, or even if we are fixing it right now for some time, and it can come again, right? Spina bifida surgical correction may lead to good options, right? So types of prolapse, I have already told you the compartment wise problem. This is the normal pelvic floor. Cystocele, when only bladder is coming out, or urethrocoele, when urethra is only coming out. When both of them are coming out, this is called cystourethrocoele, right? So you need to be very careful. Apical compartment, central, it can be only uterus or uterus with vagina, right? Posterior compartment can be rectum or rectum with gut loops, right? So classification that we know. So differential diagnosis जिंदगी में हमेशा याद रखना, हर चीज का डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टनल विजन के साथ चलेंगे कि मुझे नजर आ गए प्रोलैप्स और ये प्रोलैप्स ही है, you may end up in disasters. So always you need to have your differential diagnosis. I have put some pictures as well. ये यूरोगाइनी की सर्जरी हो रही थी, ये यूरोगाइनी के स्पेशलिस्ट हैं जिनकी ये पिक्चर मैंने ली है। शी इज वेरी गुड यूरोगाइनोलॉजिस्ट। तो ये उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन पे ये देखें कि वजाइनल सिस्ट थी। सो एवरी मैस इन वजाइना इज नॉट प्रोलैप्स। सो सिस्टिक स्वेलिंग इन वजाइना कैन बी अ डिफरेंशियल। पोलीपॉइडल ग्रोथ coming from the cervix or through the uterus, endometrial polyps हो सकती हैं, they can prolapse outside the vagina. Chronic inversion, but this will look different. Look at this is chronic inversion. Usually जो prolapse है वो ये pinkish होगा, ठीक है, unless the prolapse is having ulcers या कोई huge ulcer है इस तरह का, otherwise this red thing is only in inversion. So ये आपकी अब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि पिंक और रेड का डिफरेंस आपको क्लिनिकली पता होना चाहिए। Or you can have an elongated cervix. Uterus is there in its place, उसका कोई मसला नहीं है, but elongated cervix is basically protruding outside, right? And for all other symptoms, you need to rule out the differentials as well. Like backache के आपने देख लेने हैं, irregular spotting के देख लेने हैं, urinary problems में कोई midstream कराना है, ठीक है, तो वो जो symptoms हैं उनके differentials आपने देख लेने, right? ये तो मैंने mass का differential आपको दिया है, something coming out of vagina का differential दिया, right? So these are the classification systems over the year 1963. पोर्जिस ने सोचा कि मैं स्लाइड डिग्री, मॉडरेट डिग्री, मार्क डिग्री पे करूं, कि इस पे हम डिवाइड करें, लेकिन फिर लोगों को समझ नहीं आई कि स्लाइड डिग्री क्या है, मॉडरेट क्या है, मार्क क्या है। फिर बेडन सर आए 1972 में, ही डिवाइडेड इनटू द ग्रेड्स, देन इट remained the same till 1980 when we have a beacon system, and then from 1996 it's almost like 19 years up till now we are following the POPQ. और POPQ को भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था अल्लाह के हुक्म से। कोई 5-7 साल हुए हैं कि लोगों को POPQ को पता चलना शुरू है, पाकिस्तान में स्पेशली, बाहर में नहीं कहती। और अब ये बहुत ज्यादा रुझान हो गया कि दे आस्क यू अ क्वेश्चन इन द एग्जाम एज वेल, दे गिव यू अ सिनेरियो एंड दे वांट यू टू नो द स्टेज, बिकॉज स्टेज 1 और 2 का अलग ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, 3 और 4 में यू नीड सम intervention. So they want you to know the stage from the scenario, and then they want you to answer the treatment, or they may be wanting a diagnosis from you of the stage. So what is the stage? So POPQ should be in your fingertips. टोक्स में बेटे एक स्टेशन लाजमी आता है POPQ का, so we'll be studying it, right? So these are the D-Lancy support system. You need to देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि किस लेवल का प्रॉब्लम है और किस लिगामेंट में प्रॉब्लम है, तब तक आप सही करेक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यूट्रोसैक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, दीज आर द लेवल 1 सपोर्ट्स। लेवल 1 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये सपोर्ट करती हैं यूट्रस और वजाइनल वॉल्ट को, राइट?
So when only the middle compartment is protruding outside, you should know in your brain that uterosacral and cardinal ligament is deficient. वहां कोई प्रॉब्लम हो गया है, हमने जो भी करना है इन लिगामेंट को करना है, बाकी किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, राइट? देन ये यहां देखते जाओ, लेवल 1 में क्या आएगा? एपिकल आएगा, ठीक है। लेटरल लेवल 2 में पेल्विक फेशियाज, यानी यूट्रस के जो फेशियाज लेटरली जा रहे हैं पेल्विस को, इसमें एंडोपेल्विक फेशिया है, रेक्टोवेजाइनल, ओके, इसको कहते हैं प्यूबो सर्वाइकल और प्यूबो यूट्राइन और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये 3 फेशिया हैं। ये तीनों फेशियाज जो है ना, ये आपके वीक हैं। तो जब फेशियाज तक बात चली जाती है साइडों पे, तो रेक्टोवेजाइनल तो आपकी पोस्टीरियर इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और प्यूबो सर्वाइकल मतलब आपकी एंटीरियर भी जाएगी। तो जब लेवल 2 जा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टोसील, कुछ ना कुछ रेक्टोसील मिल रही है। तो अब आपको पता है जब सिस्टोसील रेक्टोसील आ गई है तो फिर क्या हुआ? लेवल 2 अब डैमेज हो गया। तो सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज फेशियाज मोस्टली, राइट? ये सर्जरी तक मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कहाँ कहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। लेवल 3 इज द लिवेटर एनाई मसल, दैट सपोज द लोअर थर्ड ऑफ वजाइना, और लिवेटर एनाई के साथ आपकी पेरिनियल बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टल, एपिकल, लेटरल, डिस्टल। डिस्टल में बेसिकली यू विल बी हैविंग, जब आपकी पेरिनियल बॉडी चली जाती है ना, तो मोस्टली जो पोस्टीरियर वॉल है वो बहुत बुरा प्रोलैप्स इसका होता है मोस्टली। और जब तक ये लेवल 3 पे आती है ना, तो 1 and 2 आर ऑलरेडी गॉन, ठीक है। सो दिस विल बी रिजल्टिंग इन moderate or severe cystocele and rectocele plus stage 3 or 4 prolapse of the uterus, right? So D-Lancy system you should know. This is the POPQ staging, the famous POPQ staging. अब आज देखो, ये तो रट्टा आपने खुद लगाना है, क्योंकि सारे लोग जितने भी बाबे थे, बेडन, बीकम, इन सब ने क्या किया कि स्टेजेस तो ले आए, ग्रेडिंग भी ले आए, डिग्रीज ले आए, सबका रेफरेंस क्या था? हाइमन। सबका रेफरेंस हाइमन था, यानी हाइमन के ऊपर जो भी है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, यानी कि वो अभी इतना प्रोलैप्स नहीं है। हाइमन के बाहर आपने पॉजिटिव स्कोरिंग करनी है, ठीक है। सबका रेफरेंस पॉइंट हाइमन था। सो 0 पे एवरीथिंग इज एट इट्स प्लेस, नथिंग इज कमिंग आउट और कमिंग डाउन, नॉट इवन 1 सेंटीमीटर। नंबर 1 स्टेज, लीडिंग एज ऑफ द प्रोलैप्स रिमेन 1 सेंटीमीटर और अबव द हाइमन रिंग। अब हमने एक बार डिसाइड कर ली कि यहाँ पे कहीं हाइमन का रिंग होगा। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है जहां पे मैं लेबल कर रही हूँ, ओके। सो दिस इज द हाइमनल रिंग। ये सर्विक्स पड़ी हुई है, यहां से ये 1 सेंटीमीटर आई, ये 2 आई, ये 3 आई, ये 4 आई, ये 5 आई, 6 आई। जब तक ये हाइमन के रिंग से 1 सेंटीमीटर या इसके ऊपर है, दिस इज स्टेज 1। इवन अगर आपका ब्लैडर भी आ जाता है, रेक्टम भी वजाइना में आ जाती है, ठीक है, एंटीरियर फ्लैप से पोस्टीरियर, दिस विल बी स्टेज 1। स्टेज 2, व्हेन इट इज, अब ये इट कम्स इन दिस 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन। अब ये 1 सेंटीमीटर बाहर निकला है, ठीक है। सो दिस विल बी स्टेज 2। स्टेज 3 इज फ्रॉम, यहां से जहां पे स्टेज था 2, 1 सेंटीमीटर आउटसाइड द हाइमन टिल देर इज अ कंप्लीट इवर्जन, ठीक है। अब जो कंप्लीट इवर्जन है ना बच्चों, ये फर्क है एंटीरियर वॉल के लिए और पोस्टीरियर वॉल के लिए। Can anybody tell me what's the difference in the length of anterior and posterior wall? Fatma, mostly these are the questions जो आपने inbox में पूछे हैं. These are the questions for clinical exam, right? We do not need to know much of it in the written, but still I'll answer them in the end, right? Don't worry. Okay, anterior wall is, what is 6 or 7? Anterior wall का लेंथ कितना है? Anterior wall का लेंथ और posterior wall का नॉर्मल लेंथ कितना है? कोई डिफरेंस है या मैं एम ही कह रही हूँ? हम्म, anterior 6, posterior 7. Anybody else wants to answer? No? Okay. So 7 centimeter is your anterior vaginal wall and posterior is 10. 10 आपने याद रखा, ये TVL है ना,
total vaginal length या total length of vagina, this is 10, right? So this is the difference. और यही डिफरेंस होगा इनकी स्टेजिंग में जब भी आप एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे, एंटीरियर वॉल के प्रोलैप्स में, पोस्टीरियर वॉल के प्रोलैप्स में, राइट? क्योंकि अगर एंटीरियर का -6 है, ठीक है, अगर एंटीरियर का, सॉरी, माइनस, एक मिनट, जस्ट गिव मी, sorry for the interruption. So this is what you will be doing in your exam. If you have anterior wall prolapse, basically what will happen कि +7, सॉरी, हमने क्या कहा कि हाइमन के ऊपर जितनी रीडिंग है वो प्लस माइनस में है और जो नीचे है वो सारी प्लस में है, ठीक है? प्लस में आपने ऐसे याद रखना है कि जब आपकी पॉजिटिव फाइंडिंग आना शुरू हो जाए तो प्लस में रीडिंग जाना शुरू हो जाएगी। जब आपकी पॉजिटिव फाइंडिंग अभी इतनी ज्यादा नहीं है तो आपकी रीडिंग नेगेटिव के अंदर है, ठीक है? तो पॉजिटिव फाइंडिंग मतलब क्लिनिकली पॉजिटिव होना, राइट? सो उसमें आपने ये करना है कि जो आपकी इंटीरियर वॉल है, व्हेन इट इज +7 सेंटीमीटर, तो व्हाट इट विल बी, व्हाट स्टेज इट विल बी? इंटीरियर वॉल, if it is +7, what stage it will be? 4, because total length has come out, right? बट यही अगर आप पोस्टीरियर में कर रहे होंगे तो पोस्टीरियर में क्या होगा? +7 क्या स्टेज होगी? गाइस यू नीड टू इंटरैक्ट। गलत जवाब भी दोगे तो इट्स बेटर देन बीइंग रॉन्ग इन एग्जाम और इन रियल लाइफ। पोस्टीरियर में +7 विल बी स्टेज 3, what I have told you, right? Very nice, Imtishal, thank you. So this is the difference when you are solving the MCQs. आपको anatomy, आपको ये measurements, आपको ये everything पता होनी चाहिए, ठीक है? Stage 4 is essentially complete eversion of vagina. So how they calculate the staging? First of all, they have 2 points on the anterior and posterior vaginal wall that are 3 centimeters from the hymen in the anterior and the posterior wall. These are AA and AP. ए का मतलब क्या है? ए एंटीरियर और ए पोस्टीरियर। पॉइंट ए है जो ए एंटीरियर वॉल पे है और ए पोस्टीरियर वॉल पे है, इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द हाइमेन, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क इन द एनाटमी। एंटीरियर वॉल में दिस इज द एंड ऑफ यूरेथ्रा और ये यूरेथ्रोवेसिकल जंक्शन को मार्क करता है, राइट? एंड इन द पोस्टीरियर वॉल दिस इज बेसिकली एनोरेक्टल जंक्शन। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन अदर 2 पार्ट्स आर बी ए इन द एंटीरियर। बी पॉइंट्स हैं जो एक एंटीरियर वॉल पे एक पोस्टीरियर वॉल पे है, राइट? सो बी एंटीरियर और बी पोस्टीरियर जो है ना, व्हाट आर दीज? बेसिकली वेन एवर दिस वॉल विल प्रोलैप्स आउटसाइड, द लीडिंग एज विल बी द बी पॉइंट। तो वो जो आपको बताएंगे ना कि ये फलाना इतने पे है, इतने पे है, तो वो बेसिकली बी पॉइंट होगा। तो जब भी आप ग्रिड बना रहे होंगे तो आपने उसको वहां पे मेंशन करना है, राइट? द डी इज बेसिकली योर पोस्टीरियर फॉर्निक्स, सी इज सर्विक्स, and this is total vaginal length. The 2 findings are external. These 7 points are internal, right? 2 are external, that is genital hiatus and perineal body. Genital hiatus is from the middle of the urethra to the end of the hymen, posterior hymenal ring, and from there to the middle of the anal opening, anal canal, this is your perineal body, right? So this is how you make a grid: AA, BA, C, genital hiatus, perineal body, total vaginal length, then posterior markings like posterior vaginal wall का जो आपका A point है, B point है, and then posterior fornix, ठीक है? ऐसे आपने ग्रिड बनानी है। This is how you measure genital hiatus. This is very important. Just let me hide this floating control. So this is how first you examine the patient and you examine the genital hiatus. Then you examine measuring tape, फीता, जो भी चीज आपने रखी है, फिंगर आपने अगर मेजर की हुई है, यू कैन डू इट विद योर, पहले जमाने में पेप्समियर लेते थे, उसकी वो स्टिक आती थी, उससे भी ले सकते हो, उसके ऊपर मार्किंग लगा के, ठीक है? ये आपने 2 कैलकुलेट कर ली। उसके बाद अगर प्रोलैप्स नहीं है तो ज़ाहिर है हर चीज अपनी जगह पे ही होगी, तो फिर आपने उसको कैसे ग्रिड पे लिखना है? -3, ठीक है? अगर कोई भी प्रोलैप्स नहीं है, ए भी -3 होगा, ए बी भी -3 होगा अगर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स नहीं है, और फिर आपने सी और डी को देख लेना कि वो क्या है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आपने क्या कर लिया? ओके, सर्विक्स बिलो हाइमेन पॉजिटिव मार्किंग हम कर चुके हैं। जिसकी हिस्टेक्टमी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने गौर से देखना है कि जब आपने ग्रिड बनाना है तो हिस्टेक्टमी में आपने वॉल्ट को कंसिडर करना है सी, और डी खत्म हो जाता है, ठीक है? डी जो आपका टोटल पोस्टीरियर फॉर्निक्स था,
ये देखो, ये आपका खत्म हो जाएगा इन केस ऑफ हिस्टेरेक्टमी, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा और बाकी ये सारे पॉइंट्स आप करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये लिखी हुई है कि कंप्लीट प्रोलैप्स में जो आपका बी ए है दैट विल कंसाइड विद द सी, क्योंकि एवरीथिंग इज आउटसाइड, तो जो बी ए है या ए है तो वो सारा कुछ जो है ना बाहर होगा, तो फिर ये सारा सर्विक्स के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट था वजाइना के अंदर, राइट? सो दिस इज 2 पॉइंट हमने मेजर कर लिए, फिर मैंने कहा आप इन मेजरिंग चीजों के साथ आप कर सकते हैं। और देखो, अगर हर चीज अपनी जगह पे है तो आपने नॉर्मली ही मेजरमेंट करनी है, अगर हर चीज अपनी जगह पे नहीं है तो जितना बाहर प्रोट्रूड कर रहा है उसकी फाइंडिंग यूरिथ्रा से नीचे आपने करनी है, एंटीरियर वॉल की, और पोस्टीरियर वॉल जितना भी हाइमेनल रिंग से नीचे है उसको पोस्टीरियरली मेजर कर लेना, जितने सेंटीमीटर आपको स्टेज पता चल जाएगी। ठीक हो गया? सो हाउ यू मैनेज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 1, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये लाल लाल निशान इसलिए लगाए ताकि आपको याद रहे। किसी का BMI 30, ये नाइस गाइडलाइन है आपकी, किसी का BMI 30 से ज्यादा है तो आपने वेट लॉस करना है, मिनिमाइज करनी है वेट लिफ्टिंग, यानी कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स को आपने मैनेज करना है, और कॉन्स्टिपेशन करें, उसको ट्रीट करें, ठीक है? देन इफ समवन इज हैविंग वेजाइनल एट्रोफी तो यू कैन गिव देम टॉपिकल एस्ट्रोजन ताकि वो प्रिमेरिन की क्रीम लगाते रहें। अगर नहीं, समवन हु इज हैविंग फिजिकल और मेंटल या कोग्निटिव इंपेयरमेंट है तो आप उनको वेजाइनल रिंग्स भी डाल सकते हैं, 3 वीक्स के लिए हम डालते हैं, ठीक है? अब ये नाइस गाइडलाइन है जो यहाँ हमने कोट की है। स्टेज 1 एंड 2 पॉप क्यू के लिए ओनली सुपरवाइज्ड पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग इज इनफ फॉर फर्स्ट 16 वीक्स, यानी 4 महीने के लिए आपने उसको सुपरवाइज पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग पे डाल देना है। स्टेज 1 और 2 का क्या मतलब है कि हाइमन के अंदर ही चल रहा है अभी सारा कुछ। 1 क्या था? -1 एंड अबव, 2 +1 -1, राइट? स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यहां तक आपका क्या है, PFMT फॉर 4 months, और किसी की अगर पेस्ट्रीज भी आप कोई डालना चाहे या वो ऑप्ट करना चाहे तो यू कैन एक्सप्लेन देम, राइट? सो हाउ टू एक्सप्लेन पेस्ट्रीज? Pastries are basically rubbery or silicone made gadgets that are put inside the vagina, and they are different in size and shapes and their functions. So you need to tell them that there are some prerequisites, और कुछ बातें हैं जो आपको पेस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए before you insert them, right? If you patient has vaginal atrophy, you need to give them topical estrogen, and म्यूकोजा को पहले आपने जिंदा करना है, रिवाइव करना है, then you put up पेस्ट्री inside. अदरवाइज आपने ड्राई म्यूकोजा के ऊपर पेस्ट्री डाल दिया तो she will end up having ulcers and stuck pastries, right? Then you need to explain them. एक पेस्ट्री मैंने मंगाई, मैंने साइज मेजर किया और डाल दी, जरूरी नहीं है कि वो आपको फिट आ जाए। देयर कैन बी मोर देन वन फिटिंग टू फाइंड अ सुटेबल साइज। दैट इज व्हेन यू इंसर्ट अ पेस्ट्री, पेशेंट नीड्स टू स्टे विद यू, दे नीड टू वॉक, दे नीड टू यूरिनेट, एंड दे नीड टू टेल यू कि हाँ जी अब ना मैस बाहर आ रहा है ना पेस्ट्री बाहर आ रही है। आपने बड़ी अच्छी फिट करके पेस्ट्री डाली होती है और पेशेंट वॉक करता है और फिर हाथ में लेके वापस आ जाता है, ठीक है? सो यू नीड टू make sure that she is doing her some kind of work before she leaves and she is okay with the pessary. Then there are different pessaries with different effects, because if you are giving these sort of blocking pessaries, you will not be able to do a sexual intercourse. So these type of shelf pessaries or blocking pessaries, these are given in the patients who are not sexually active. So these are more effective, but they have a side effect of lacking sexual maintaining sexual function. Complications बहुत important है, you need to tell them. Number 1, vaginal discharge. Number 2, bleeding. Difficulty in removing, they can come out themselves. Or at least every 6 months, you need to change the pessary. ठीक है? और pessaries are given with the pelvic floor muscle training, not alone. Now the surgical treatments. Surgery is only indicated in the patients whose symptoms have not improved. You have given lifestyle modification, you have given them vaginal estrogen, you have given them pelvic floor muscle training. 4 months के बाद वो आ गई हैं आपके पास कि जी हम तो ठीक नहीं हुए. So you need to offer them surgical treatments. अच्छा, वहां पे हमने ये बात की थी, if someone is having in stage 1 and 2, they get benefit by pelvic floor muscle training, they need to continue till they want the benefit to be continued, right? But if someone decline the surgical non-surgical treatment in the beginning, from the beginning, then you can offer surgical treatment. For apical prolapse, definitive is vaginal hysterectomy with or without sacrospinous fixation. आपने देखना है कि वॉल्ट को हमने फिक्स करना है कि नहीं करना. कंजर्वेटिव में सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी या स्लिंग ऑपरेशंस होते हैं, इन विच यू एलिवेट द यूट्रस, एंड सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी में आप पीछे उसको सैक्रम के साथ चिपका देते हैं, ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है स्पाइन के ऊपर, उसके साथ.
और स्लिंग में देर कैन बी अ स्लिंग, दिस इज ऑल्सो अ स्लिंग बिकॉज वी यूज लाइक mesh to elevate this uterus and attach it to the posterior wall, posterior part of body, abdominal wall, right? But if you do not use mesh, or even with mesh you can use sling procedure जिसको हम कहते हैं, उसमें रेक्टस शीथ के फ्लैप्स आप बनाते हैं इस तरह के 2-2 सेंटीमीटर के दोनों साइड से, इनको नीचे जाके सर्विक्स से अटैच करते हैं, सर्विक्स को पुल करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप मेश लगा के भी इसको पुल कर सकते हैं, या थ्रेड्स के जरिए भी इसको पुल करते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स टू डू अ स्लिंग। अगर किसी को इंटीरियर वॉल में प्रॉब्लम है तो इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स रिपेयर करेंगे, और अगर पोस्टीरियर में तो अलोंग विद दीज ट्रीटमेंट्स यू आर गोइंग टू डू अ पोस्टीरियर वॉल रिपेयर। ओके, फॉलो अप आफ्टर सर्जरी एवरी 6 मंथ्स फॉलो अप आपके करना है, पेशेंट का वजाइनल एग्जामिनेशन करना है। अगर रेकरेंट सिम्टम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, यू नीड टू रेफर देम टू यूरोगाइनोकोलॉजिस्ट, राइट। देन ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दीज आर द नाइस गाइडलाइन पॉइंट्स। इफ समवन डज नॉट हैव अ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस राइट नाउ, अभी अगर उसको सिम्टोमेटिक नहीं है, तो डू नॉट डू एनी प्रिवेंटिव सर्जरी along with the prolapse surgery to avoid it, because it will not, right? Because if you do an anterior or apical prolapse surgery, there is already a risk of post operative stress incontinence. तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब anterior रिपेयर होगा और apical prolapse होगा तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, वो urinary incontinence होगी, ठीक है। सो डोंट डू इट। कॉल्पोक्लिसिस सिर्फ उन लोगों में करना है who do not intend to have a penetrative vaginal sex, because it has, ऐसे हम मुंह से जब एमसीक्यूज कर रहे होते हैं आईएमएम के बच्चे ऐसे फौरन कह देते हैं कि जी ये तो कॉल्पोक्लिसिस, कॉल्पोक्लिसिस। कभी देखो वीडियो कॉल्पोक्लिसिस की, it has huge intraoperative and post-operative complication risk, because it's a very difficult procedure. But someone is very old, or they cannot have a major surgery, do not need a major surgery, then they can go, but only with the experienced hands, right? क्योंकि प्रोलैप्स की सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो पहली दफा किसी एक्सपीरियंस बंदे से होनी चाहिए, यूरोगाइनी जितनी भी है, अदरवाइज पेशेंट इज डूम्ड, right? So if someone is having apical prolapse, that is middle compartment with stress incontinence, किसी को क्लिनिकली है, तो फिर साथ ही जो हम केली स्टिच लगाते हैं, या जो भी आपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का सर्जिकल रिपेयर करना है, कोई टेप लगानी है, जो भी करना है आप साथ करते हैं, बल्किंग एजेंट डालना है, जो करना है आपने। अगर नहीं है तो फिर आपने साथ सर्जरी नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस और आपकी उससे वो वर्स हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज कंबाइंड प्रोसीजर इज इफेक्टिव ओनली फॉर 1 year and it may persist despite surgery. Got it? So these are the surgeries and the success rates. ये आपसे पूछते हैं कि हमने प्रोलैप्स था और एंटीरियर वॉल का, आपने एंटीरियर कॉल्पोरेफी की, सक्सेस रेट इज 100%, बट देयर इज अ रेकरेंस 43%. मिडल कंपार्टमेंट, you can have a conservative surgery or a more definitive surgery. Success rate ranges between 93 to 100%, but there is a risk of wall prolapse. This is your MCQs, 111%. Posterior compartment में आपने कॉल्पोपेरिनियोरेफी कर दी, but there is a success is variable, but recurrence is 13, ये पक्का है, ठीक है। So जाग रहे हो कि सो गए हो? Brain buzz is here. Now you need to communicate and now you need to interact, guys, ठीक है। I'll be putting 2 questions on the screen. You need to answer them. Okay. So are the questions visible? Guys, read it and send your answers in the inbox. No answer? इम्तिशाल, फाइजा, फातिमा, दिमाग लड़ाओ यार। क्वेश्चन विजिबल है? रोशान, डॉक्टर मेरा, आर द क्वेश्चंस विजिबल? Yes, Dr. Rashta, all the questions are visible. ओके, जवाब आ गया। Good. इंटेरोसील, इम्तिशाल इंटेरोसील किसका जवाब है, पहले का कि दूसरे का?
Imtishal, you can unmute yourself and communicate more effectively as compared to coming on chat, Writing. please. हाँ. Nobody else want to answer? Guys, this is the exam of interaction and communication. Please. Second का. अच्छा जी, first second का. Okay. Second का क्या है? फर्स्ट का जी इंतशाल ने कहा है कि इंटेरोसील है. अच्छा जी. और सेकंड का? इंतशाल जल्दी लिखो. अच्छा जी. सेकंड का शायद सिस्टोसील. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, I appreciate Intishal for your active participation and for being courageous, even if you're wrong for maybe one question. Um, but still, I appreciate you came forward to answer, right? So basically, thank you, doctor. First is cystosil. कॉल्पो सस्पेंशन क्या है? कॉल्पो क्या होता है? वॉल्ट. ठीक है, ये वजाइना के लिए कॉल्पो यूज करते हैं. यूट्रस के लिए आप हिस्टेरो यूज करते हैं वर्ड. ठीक है, कॉल्पो वजाइना के लिए यूज करते हैं. सस्पेंशन कि आपने वॉल्ट को उठा के लटका दिया. तो बेसिकली वॉल्ट को जब हम उठा के लटकाते हैं तो ये पीछे वाली वॉल के साथ, जैसे हम सैक्रोस्टेरोपेक्सी करते हैं ना, तो इसी तरह हम कॉल्पो सस्पेंशन करते हैं. ठीक है, हम वॉल्ट को उठाते हैं, वॉल्ट को लैप्स में, और उठा के लगा देते हैं पीछे सैक्रम के साथ. तो जब भी आप किसी एक वॉल को स्ट्रेंथन करोगे सर्जरी से, तो हमेशा जो दूसरी वॉल है ना वीकन हो जाएगी और वहां का प्रोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. तो जब आपने सैक्रोकॉल्पोपेक्सी कर ली तो क्या हुआ? कॉल्पो सस्पेंशन और सैक्रोकॉल्पोपेक्सी, सॉरी मैंने ऑपोजिट बोल दिया. जो सैक्रोकॉल्पोपेक्सी है वो ये प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, तो इसलिए उसकी की एंटीरियर वाली होगी. जो कॉल्पो सस्पेंशन है बेसिकली वो ये एंटीरियरली होती है ये. ठीक है, सो आपने एंटीरियर वॉल को जब स्ट्रेंथन कर दिया कॉल्पो सस्पेंशन के जरिए, तो फिर क्या हुआ? ये एंटीरियर वॉल रिपेयर में भी यूज होती है. एंटीरियर वॉल के जो प्रॉब्लम्स है ना इनकॉन्टिनेंस के, ये आपका सैक्रो कॉल्पो सस्पेंशन है, कॉल्पोपेक्सी, और ये कॉल्पो सस्पेंशन है. ठीक है, तो जो कॉल्पो सस्पेंशन आपने क्या किया, एंटीरियर वॉल को स्ट्रेंथन किया, तो पीछे से आ गया रेक्टो एंटेरोसील. और ये जब आपने मेश को उठा के लगाया पोस्टीरियर वॉल के साथ, तो फिर आगे वाली वॉल वीकन हो गई, तो क्या आ गया? सिस्टोसील. राइट, गॉट दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या कॉन्सेप्ट है. कि जब भी आप किसी चीज को, इसलिए सर्जरीज को थोड़ा सा जो पार्ट 2 और एमसीपीएस के स्टूडेंट्स आपको पढ़ाएंगे और पढ़नी भी पड़ेंगी आपको. ठीक है, ताकि अगर आपने एग्जाम इसको आपने करना है तो हल एमसीक्यूज को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? जब तक बाकी लोग अपने क्वेश्चंस टाइप कर लें, मैं फातिमा के सवाल का जवाब दे दूं. फातिमा, palpation is and speculum is done is only stage 1 prolapse, right? 2 3 4 में आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रोलैप्स नीचे आ रहा होता है, तो स्पेकुलम नहीं करते. और जब वो नीचे आया होता है ऑलरेडी आउटसाइड होता है, तो जब वो बाहर लटक रहा होता है, तो अगर ड्राई है सर्विक्स, तो यू जस्ट जेंटली वेट इट विद नॉर्मल लाइन एंड देन यू टेक अ पैप स्मेयर. अदरवाइज अगर वो ड्राई नहीं है बहुत ज्यादा हैंगिंग की वजह से, तो यू जस्ट योर पैप स्मेयर लाइक दिस. ठीक है, अगर वो हैंगिंग है. अदरवाइज स्टेज 1 में यू डू अ स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड देन टेक अ पैप स्मेयर. राइट, पेल्पेशन भी इसी तरह ही है. अगर वो जब आपने स्टेज एक दफा कर ली है, तो यू रिड्यूस द प्रोलैप्स एंड डू अ पेल्पेशन आफ्टर इंस्पेक्शन. क्योंकि देखो जो इंस्पेक्शन है, वो जो स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन है ना, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं है क्योंकि हम रिटर्न के लिए पढ़ रहे थे. तो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में के जो स्टेप्स है ना, वो आपने कभी मिस नहीं करने. आपका इंस्पेक्शन हो गया, फिर क्या हो गया? पेल्पेशन. पेल्पेशन में आपने वही करना है कि आपने पेल्पेट मैस को करना है टू गेट अबव द स्वेलिंग. स्टेज 3 4 वो क्लिनिकल के लिए होता है. अगर अब तो पॉप क्यों हो गया ना, वो जो हम पहले पेल्पेट करते थे ना कि स्टेज 3 है या स्टेज 2 है, यानी कि प्रोसीडेंशिया है कि नहीं है, तो वो हम पहले करते थे. अब भी हम कर सकते हैं, क्लिनिकली टू हेल्प यू पीपल, दैट इफ यू योर फिंगर्स मैक्सिमम आपने बिल्कुल इंट्राइटस के करीब अपनी दोनों फिंगर्स को पिंच करना है, और दोनों वजाइनल वॉल अगर इजीली आपस में मिल रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर, बीच में कोई मैस फील नहीं हो रहा, कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब है कंप्लीट प्रोलैप्स है. अदरवाइज इफ यू फील अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन बिटवीन,
इट मीन्स दैट इट्स स्टिल नॉट अ कंप्लीट प्रोलैप्स। ठीक है, तो अगर बिल्कुल बाहर आया तो स्टेज 2 तो है। ठीक है, तो वो स्टेजेस वाला सिस्टम था जो पुराना इससे पहले वाला हम करते थे, ग्रेडिंग स्टेजिंग, उसमें। अब ये जो स्टेजिंग है, ये आपने मेजरमेंट्स करनी है फीते के साथ। ठीक है, सेंटीमीटर्स की गेम है सारी। बायो मैनुअल भी इसी तरह ही है कि सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन कर ली, फिर आपने पैल्पेशन कर ली। अगर स्पेक्युलम कर सकते हो, स्टेज 1 है तो बिल्कुल करो, और फिर आपने रिड्यूस करके बायो मैनुअल करना है ताकि यूट्रस और एनेक्सा को देखना है। ठीक है। कॉल्पो बेटे इम्तिशाल, जो सस्पेंशन है ना, वो मैंने पिक्चर इसलिए दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। जो कॉल्पो सस्पेंशन है ना, वो आपकी होगी एंटीरियर। एंटीरियर आपने फिक्सेशन की है, ये देखो, ये ऊपर वाली कॉल्पो सस्पेंशन है। एक मिनट में इसको हटा दूंगा। ठीक है, ये ऊपर वाली पिक्चर आपकी कॉल्पो सस्पेंशन है। तो आपने कॉल्पो इसको उठाया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए बेसिकली यूज होती है। आपने वेजाइनल वॉल को उठा के साइडों पे चिपका देते हैं ताकि यहाँ पे यूरिथ्रोवेजाइकल एंगल जो है ना वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और जो ये नीचे है सैक्रोकॉल्पोपेक्सी, इसमें आपने पोस्टीरियरली अटैच किया है वॉल्ड को। जब आपने पोस्टीरियरली अटैच किया तो फिर एंटीरियर वॉल वीकन हो जाएगी, और जब आपने एंटीरियरली अटैच किया तो आपकी पोस्टीरियर वॉल वीकन हो जाएगी, तो वहां से प्रोलैप्स निकलेगा हमेशा, जो वॉल वीकन होगी। ठीक हो गया? एम आई क्लियर अप टिल नाउ? समझ आ गया? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आई वांट योर फीडबैक इन द पेड ग्रुप जो ऑलरेडी है। अदरवाइज जो आपका दूसरे वाला ग्रुप है, आई प्लीज 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 आई नीड योर फीडबैक, राइट? सो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई हैं, आई वेलकम यू ऑल इन द ग्रुप ऑफिशियली, और विल बी स्टार्टिंग आवर एक्टिविटीज फ्रॉम टुमारो। और जिनकी नहीं हुई, आप देख लो करानी है कि नहीं करानी। आई थिंक करा लोगे तो बेहतर है, फायदा होगा। ठीक है, तो थैंक यू so much for joining. I hope it was helpful. And please, even if you don't join, just give us your feedback so we can improve ourselves. Okay? Thank you so much for joining. Now I'll be finishing the meeting for all.